Now then the next chapter which we are going to do is permutation, right? A very important chapter as far as practicality is concerned, because this is the topic. Permutation and combination is the topic which is applicable, which can be applied to day-to-day life calculations and many. So to begin with this chapter, first of all, what is the meaning of the word permutation, right? Permutation means Permutation means the number of ways of selecting and then arranging the things, right? Permutation means the number of ways of selecting things and then arranging those things, right? In short, you can say arrangement is permutation, but to be precise, permutation means selection and arrangement. It includes selection as well as arrangement. Now, the very first topic which we are going to do is factorial, right? What is factorial? So, it is just a symbol, right, which is used to represent the product of first n natural numbers, right? Product of first n natural number is called factorial of n, right? And is denoted by either this symbol or this symbol, right? ये दो symbols हैं factorial के लिए. Now, suppose we have a product of n first n natural numbers, right? So every time we have to keep on writing the product. So to make it compact, to make it short, we use a symbol which means the same, factorial n, or you can write this as factorial n, right? So factorial n is what? Nothing but the symbol to represent product of first n natural numbers, right? We also call it continued product, क्योंकि ये product continuation में आ रहा है, right? तो this may be termed as a continued product. Clear? So factorial is what? It is only a symbol to represent the product of first n natural numbers. So if somebody asks you what is factorial n, right? So this is symbol of what? The product of first n natural number. Or you can write this as start product with n, keep on decreasing consecutively till you get 1, right? So factorial n is 1 into 2 into 3 till n, or you can write in descending order or in ascending order, or you start with the number given within the factorial and you keep on decreasing it by 1 till you get 1. Clear? This is the basic definition of factorial. What is factorial? It is nothing, only a symbol to represent the product of first n natural numbers. So if I ask you what is factorial 5 used for, so it is product of first 5 natural numbers, or you can write this in reverse order also. We oftenly use reverse order, right? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is in descending order, this is in ascending order. So this is the basic meaning of factorial, right? Now guys, as seen, the symbol of factorial is either L
or like an exclamation mark. These are the symbols, right, which we use for factorial. Now let us come to the properties of factorial, right? For properties of factorial, now what things we should know in factorial? Now guys, the very first thing is factorial n is defined only for n belonging to natural number initially and later on it was made to be defined for n equals to 0 also. तो इन सिंपल लैंग्वेज फैक्टोरियल n, जैसे मैंने बताया ये किसका सिंबल है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. अब सोचो n अगर फ्रैक्शन में है 3/2 है तो फैक्टोरियल तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, बिकॉज फैक्टोरियल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग? वी आर यूजिंग फैक्टोरियल to represent the product of first n natural number. So if n is not a natural number, can we write this, can we use this symbol? No. So factorial n is defined only for n belonging to natural number initially, और बाद में हम लोगों ने देखा कि n is equals to 0 के लिए भी हम लोगों ने इसको डिफाइन किया, was made to define, right? तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो कभी भी इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज फैक्टोरियल -5 तो क्या बोलोगे? अनडिफाइंड. कोई पूछे फैक्टोरियल 3/2, अनडिफाइंड. व्हाई? बिकॉज फैक्टोरियल n किसका सिंबल है ये इंपॉर्टेंट है. इट इज द सिंबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. अब सोचो कोई भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं फैक्टोरियल n, तो -5 कैसे हो सकता है? 3/2 कैसे हो सकता है? राइट? तो दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज अनडिफाइंड, कॉल इट अनडिफाइंड. ठीक है, तो याद रखना है पहला पॉइंट कि फैक्टोरियल n डिफाइंड है ओनली व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इनिशियली, बाद में 0 को भी इंक्लूड कर देंगे तो इट इज डिफाइंड फॉर होल नंबर्स. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट गाइज, नेक्स्ट पॉइंट. Factorial n, as we all know, is what? n into n minus 1 into n minus 2 till 1 लिख सकते हैं, राइट? अब मैं पहले एग्जाम्पल से आपको दिखाऊं. जैसे फैक्टोरियल 5 है, राइट? फैक्टोरियल 5 को क्या लिखते हो? एनी ऑर्डर 1 2 1 into 2 into 3 into 4 into 5. अगर तुम इसमें से 5 को एज इट इज़ रहने दो, डोंट चेंज दिस. 1 से लेकर 4 के प्रोडक्ट को कैन वी राइट एज फैक्टोरियल 4, राइट? यस. तुम सोचो कि अगर मैं 5 और 4 भी दोनों को रहने दो बाहर, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3. तो इसको देखकर व्हाट डिड यू कंक्लूड? इसको देखकर कैन वी कंक्लूड लाइक दिस कि फैक्टोरियल जब भी दिया हो तो फैक्टोरियल के अंदर वाले नंबर को अगर मैं बाहर निकाल दूं फैक्टोरियल साइन के, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जस्ट लेस देन दिस नंबर, नेचुरल नंबर जस्ट लेस देन दिस, दैट इज फैक्टोरियल 4. अब सोचो तुम 4 को भी बाहर निकालते हो तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 3, राइट? सो गाइज फैक्टोरियल n को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, n बाहर निकाल लिया फैक्टोरियल n minus 1, राइट? और भी मेरा मन है बाहर निकालने का तो आई कैन टेक इवन n minus 1 आउट, तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल n minus 2. और आपका मन है बाहर निकालने का और बाहर निकाल सकते हो. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन सिंप्लीफिकेशन, राइट? तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, फैक्टोरियल n
divided by factorial n minus 2 is 30. Find n. Find n. तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो याद रखना, जो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, फैक्टोरियल के अंदर में कौन सा नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा वैल्यू है, तो n इज़ ग्रेटर देन n माइनस 2. तो आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करके आप फैक्टोरियल n माइनस 2 के फॉर्म में ला सकते हो. Isn't that? So what we are going to do is we are going to take n outside, n minus 1 also outside. तो बचेगा क्या, फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल. अब ये कट जाएगा, कट जाएगा. तो what did we get? n into n minus 1 equals to 30. n into n minus 1 30 है. अब तुम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे, लेकिन मैं बोलूँगा मत करो. अगर ध्यान से देखो, दिस इज प्रोडक्ट टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो आप कोशिश करो कि 30 को भी दो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सको. तो वी कैन डू इट वेरी फास्ट. 6 into 5. अब इन दोनों में बड़ा कौन है, n. इन दोनों में बड़ा कौन है, 6. तो बड़े से बड़े को कंपेयर करो या छोटे से छोटे को करो, आंसर यही आएगा, n equals to 6. सो दिस प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर है, अगर मैं उसको बाहर निकालते जाऊं तो अंदर क्या बचेगा, उससे एक कम का फैक्टोरियल बचेगा. जैसे n माइनस 2 भी बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 3 बचेगा, राइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ जस्ट अ वाइसा वर्सा, जस्ट अ वाइसा वर्सा. वाइसा वर्सा मतलब जस्ट इसका उल्टा. अगर फैक्टोरियल n दिया हुआ है और बाहर उससे जस्ट एक बड़ा कंसेक्यूटिव होना ज़रूरी है, बड़ा, इनफैक्ट इससे एक बड़ा नंबर यहाँ मौजूद है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग इसको, राइट. और भी देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n प्लस 5. इनमें से सबसे बड़ा नंबर ये है, ये इसका फैक्टोरियल हो जाएगा. यू शुड कीप इन माइंड दैट बीच में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए. n प्लस 2 के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो इससे बड़े होने चाहिए और कंसेक्यूटिव होने चाहिए. तो हम लोग इस पूरे प्रोडक्ट को फैक्टोरियल में लिख सकते हैं ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, n प्लस 5. ठीक है, लॉजिकली सोचो क्यों, तो देख लो, n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 3. अगर इस फैक्टोरियल को मैं ब्रेक कर दूं, ये किसका सिंबल होगा, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n डॉट 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 3 to 1. अब पूरे को अगर एक साथ देखोगे तो कैन यू से दैट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n प्लस 5 नेचुरल नंबर्स. देखो n प्लस 5 से शुरू हुआ, घटते गया डिसेंडिंग ऑर्डर में टिल यू गेट 1. तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 5. ये आपको समझाने के लिए, लेकिन यू कैन स्ट्रेट अवे राइट योर आंसर लाइक दिस. ठीक है, अब देखो, ठीक है, एक कुछ वैल्यूज़ में भी देख लो. मान लो कहीं लिखा हुआ है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस एज फैक्टोरियल 10, राइट. रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा, 10 बाहर निकालो, 9 निकालो, 8 निकालो, फैक्टोरियल 7 बचा, देखो रिवर्स ऑर्डर से. सो ये इंपॉर्टेंट है, बोथ द साइड्स यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ, कि दोनों केस को रिवर्स ऑर्डर में और सीधे ऑर्डर में भी हम लोग को याद रखना है दोनों. ठीक है, जैसे इस पे बेस एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं. मान लो क्वेश्चन में दिया है n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इंटू n माइनस n माइनस 8 फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल्स टू 120. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. फाइंड n. तो आप n कैसे निकालोगे, तो इस केस में आप क्या करोगे, यू ऑल कैन सी दिस इज कंसेक्यूटिव और एक बढ़ते जा रहा है एक एक करके. तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ,
फैक्टोरियल n माइनस 5, राइट. फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 120, sorry, is equals to 120, and we know that 120 can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये तुम प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो, राइट. देख लो. तो दिस इज 4, ये 4 हो गया. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो अपने से लिख सकते हो. तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया. नाउ n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10. मिल गया आपको n का वैल्यू, ठीक है. ओके, दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. देन वी हैव प्रॉपर्टी नंबर 3. याद रखना, LCM ऑफ 3 फैक्टोरियल के टर्म्स हैं. फैक्टोरियल लेट्स से n, फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल k, राइट. अगर बोलेगा इनका LCM क्या होगा, तो इनमें से जो भी बड़ा है वही LCM होगा. सपोज n m और k से बड़ा है तो इसका LCM क्या होगा, फैक्टोरियल n. व्हेन इफ n इज ग्रेटर देन m एंड k, ठीक है. तो इसका LCM क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n. जैसे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 में अगर कोई बोले LCM लो, तो उसका LCM क्या होगा इन 3 नंबर्स में, तीनों में कौन बड़ा है, फैक्टोरियल 5. तो उसका आंसर होगा फैक्टोरियल 5, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इसके बाद गाइस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स, राइट. अब देखो, अगर मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, राइट, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बस. और माई क्वेश्चन इज कि इसको एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट में, सॉरी फैक्टोरियल में इसको एक्सप्रेस करो. तो एक गिवन प्रोडक्ट को हमें फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करना है. तो यार आई मीन यू मस्ट बी नोइंग दैट फैक्टोरियल में लाने के लिए वी शुड हैव कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम द नंबर टिल वी गेट 1. तो क्या 1 तक जा रहा है, ये नहीं जा रहा. तो इसको फैक्टोरियल में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7. 7 से एक छोटा नंबर है 6, उसका फैक्टोरियल आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है. ये प्रोसेस है. तो आंसर क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 लिख सकते हो इसको बाई फैक्टोरियल 6. हो गया, फैक्टोरियल में एक्सप्रेस कर दिया मैंने. तो अगर इसको मैं जनरलाइज करूं, तो इसको मैं जनरलाइज कैसे करूंगा, अगर दिया हुआ है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, इसको बोलेगा n माइनस 4 भी ले लेते हैं, इसको बोलेगा प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हो, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है. तो ये मत सोचना कि जो लास्ट है ये सबसे छोटा है. अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में देता तो ये बड़ा हो जाता, सबसे छोटा इधर आता, राइट. तो इनमें सबसे छोटा कौन है, देखो n माइनस 4. आप इससे एक छोटा नंबर कौन सा होगा, n माइनस 5 का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो. Now in the numerator, now the numerator can be written as factorial n and denominator as n minus 5 factorial. So you can see that मैंने इसको factorial में express कर दिया. एक और example देख लो, n plus 1, n plus 2, n plus 3 को factorial में express करो. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मत बोलना ये सबसे छोटा है. तो ये ऑर्डर तो कुछ भी दे सकता है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा है उसको नोट करो. सबसे छोटा कौन है, n प्लस 1. इससे एक छोटा नंबर क्या होगा, n फैक्टोरियल आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी. तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर क्या हो गया, n प्लस 3 का फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल. तो क्या मैंने इसको फैक्टोरियल में एक्सप्रेस किया, यस. ओके, चलो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब एक और तरह का प्रोडक्ट आता है जिसको हम लोग फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करते हैं। वो कैसा प्रोडक्ट होगा, ध्यान से देखो। सपोज वी हैव, मैं एग्जांपल पहले दिखा रहा हूँ, सपोज वी हैव multiple of some number, some natural number, multiple of 3, suppose 3 into 6 into 9 into 12 into 15, छोटा सा नंबर्स ले रहे हैं, 5 टर्म्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 5 नंबर्स का प्रोडक्ट, एंड यू ऑल कैन सी दैट दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, राइट। इसको फैक्टोरियल में लाना है तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखो, एवरी टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हर एक में से एक 3 निकलेगा आपका, और इनटू है, राइट। जैसे मैं क्लियरली दिखाऊं तो ये 3, सेकेंड नंबर को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको 3 इंटू 1 कर देते हैं, थर्ड नंबर को 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। अब कितने 3s आ गए तुम्हारे पास, जितने टर्म्स हैं, 5 टर्म है तो 5 3 निकलेगा ना, एक इससे निकलेगा, एक इससे, एक इससे, इससे, और ये इनटू है तो ऑल 3 विल बी मल्टीप्लाइड। तो जो 3 कॉमन निकाल रहे हो प्रोडक्ट से, तो वो 3 का पावर कितना आ जाएगा, 5। अब क्या बचा, देखो सब में से आपने 3 निकाल लिया, हर ब्रैकेट में से क्या बचेगा, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 5। तो क्या आपने 3 6 9 12 15 को फैक्टोरियल में एक्सप्रेस किया, यस। अब इसका शॉर्टकट निकालते हैं हम लोग इसी से। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कैन वी से लाइक दिस, कि ये 3 का मल्टीपल है सब, तो 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पे जो जिसका मल्टीपल है वो नंबर लिख देना, राइट। और पावर में क्या है, जितने टर्म्स हैं, टर्म्स कितने हैं प्रोडक्ट में, 5, तो 3 के पावर में 5, और जो पावर है उसी का फैक्टोरियल, राइट। तो दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग द आंसर। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20